Hello everyone. So today we will start with Fermi-Dirac gas and Fermi energy. In last class we derived the expression for the Fermi-Dirac distribution law, which gives the most probable distribution of particles obeying Fermi-Dirac statistics. After that we wrote the Fermi-Dirac distribution law in the continuum limit. Now this is the expression. Now we'll use this expression to study the Fermi-Dirac gas and Fermi energy. Approach जो है हमारी same होगी जैसे हमने Bose-Einstein gas में लिया था. ठीक है? So we have an assembly of fermions. Fermions means we are talking about the particles which are indistinguishable and which are having half integral spin, like electrons, protons, neutrons that obey Pauli's exclusion principle. ठीक है? So this assembly of fermions that we are taking is basically forming a Fermi-Dirac gas. जैसे Bose-Einstein gas में हमने बोला था कि an assembly of bosons जो है it is known as Bose-Einstein gas. So similarly here an assembly of fermions is known as Fermi-Dirac gas. So we are considering a Fermi-Dirac gas, and the Fermi-Dirac gas is the perfect gas. We are considering a perfect Fermi-Dirac gas of n fermions enclosed in volume V. जैसे हमने Bose-Einstein gas में लिया था कि we considered a perfect Bose-Einstein gas of n bosons enclosed in a volume V. Similarly, यहाँ पर we are considering a perfect Fermi-Dirac gas of n fermions enclosed in volume V. ठीक है? अब यहाँ पर हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं परफेक्ट Fermi-Dirac गैस. परफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे हमने Bose-Einstein गैस में किया था कि गैस हमारी परफेक्ट है, सो द इंटरैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स विल बी नेग्लिजिबल, सो दैट द एनर्जी जो है इट मे बी रिगार्डेड एज entirely translational in character. Translational energy का मतलब मैंने already बताया था. This is the energy which is due to the motion from one location to the other. Particles जो हैं और जो fermions हैं, they are moving from one state to the other, so they will contribute to the translational energy. Being perfect gas है, that means जो interaction है between the particles that will be negligible. We can consider non-interacting particles, and these particles are fermions which are forming a perfect Fermi-Dirac gas. ठीक है? जैसे हमने पहले Bose-Einstein में किया था, सेम सिस्टम है, बस वहां पर असेंबली ऑफ बोसॉन्स था या असेंबली ऑफ fermions है. तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. प्रॉपर्टी क्या चेंज होगी? जो हमारे fermions होते हैं दे ओबे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. हर एक स्टेट में जो है या तो हमारे पास 0 पार्टिकल होंगे या 1 पार्टिकल होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा. ठीक है? सो अब हम आगे अप्रोच करेंगे. नाउ लेट्स से द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बी U. ठीक है? सो दीज पार्टिकल्स जो है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. सो लेट्स से n1 n2 सो ऑन जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द क्वांटम स्टेट whose approximate constant energies are u1 u2 so on रिस्पेक्टिवली, जैसे Bose-Einstein में लिया था. ठीक है? एंड इफ आई एम कंसीडरिंग GI जो है दिस इज द डीजेनरेसी और स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ द ith क्वांटम स्टेट. मतलब हमारे पास जो डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स हैं या डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, उसमें इफ वी आर कंसीडरिंग द ith स्टेट, तो लेट्स से GI इज द डीजेनरेसी और स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ द ith क्वांटम स्टेट. मतलब जो हमारी ith क्वांटम स्टेट है दैट इज डिवाइडेड इनटू GI नंबर ऑफ सब एनर्जी levels. ठीक है? So according to the Fermi-Dirac distribution law, जो most probable distribution होगा that will be given by Ni is equal to Gi upon e raised to power alpha plus beta ui plus 1, where alpha हमारा कितना था? Bose-Einstein गैस में भी हमने लिया था alpha is equal to minus mu upon kT, where mu is the chemical potential. यहाँ पर जो है हम फर्मी एनर्जी जो है उसका कॉन्सेप्ट भी जो है लेकर आएंगे. जो हमारा केमिकल पोटेंशियल होता है माइनस म्यू अपॉन केटी, इसको हम लिख सकते हैं माइनस म्यू एफ अपॉन केटी. ठीक है? व्हाट इज म्यू एफ? म्यू एफ जो है हमारा इट रिप्रेजेंट्स दी, म्यू एफ कह लो या यू एफ कह लो. ठीक है? यू एफ जो है हमारा इट रिप्रेजेंट्स द फर्मी एनर्जी एट टेम्परेचर टी. If it is at temperature T, so we can write UF as a function of temperature T. ठीक है? ये अभी हम आगे देखेंगे. जो हमारा अल्फा होता है
उसको हम इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, माइनस म्यू अपॉन के टी, दैट इज इक्वल टू माइनस यू एफ अपॉन के टी, फिर हमारा जो यू एफ है इट रिप्रेजेंट्स द फर्मी एनर्जी एट टेम्परेचर टी। आगे हम इस चीज को देखेंगे तो ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो व्हाट इज आवर एनआई नाउ इन टर्म्स ऑफ डी, हमारे पास Ni क्या होता है, जी आई अपॉन ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई प्लस 1, ठीक है। और D हमारा क्या होता है, वी नो D इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर में टर्म है अल्फा की, यहाँ पर दिस अल्फा टर्म ये हमारी ई रेज टू पावर अल्फा में है। सो ई रेज टू पावर अल्फा जो है इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन डी। तो Ni हमारा क्या हो गया, जी आई अपॉन 1 अपॉन डी इंटू ई रेज टू पावर बीटा यू आई प्लस 1, सिंस डी इज ई रेज टू पावर माइनस अल्फा, सो वी कैन राइट ई रेज टू पावर अल्फा एज 1 अपॉन डी, ठीक है। नाउ जो हमारा डिनोमिनेटर है ऑफ इक्वेशन 4.22, दिस इक्वेशन, इसमें जो है +1 का फैक्टर आ रहा है, ठीक है। सो अल्फा जो है नीड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू पॉजिटिव वैल्यूज ओनली बट में एज्यूम नेगेटिव वैल्यूज एज वेल, अनलाइक टू बोज-आइंस्टीन गैस। इसका मतलब क्या है, देखो जब हमने बोज-आइंस्टीन गैस पढ़ा था तो वहां पे हमने बोला था कि हमारा जो Ni है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द ith एनर्जी स्टेट और द ith क्वांटम स्टेट। ये Ni जो है हमारा ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है दे कैन नॉट बी नेगेटिव। और जो हमारा बोज-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था वहां पे प्लस की जगह जो है यहाँ पे माइनस था, तो वहां पर हम कहते थे फिर ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है ये इस 1 से ज्यादा होनी चाहिए ताकि Ni जो है हमारा पॉजिटिव रहे। जब हमने ये कंडीशन कंसीडर की थी कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है डिनोमिनेटर की इट शुड बी greater than 1 if we want the particles to be positive, ठीक है। तो वहां पर हमने ये कंडीशन ली थी that this should be greater than this exponential into 1 upon d जो है it should be greater than equal to 1। तो उसके बाद जो हमारी कंडीशन आई थी वो क्या आई थी, हमने लो एनर्जी वैल्यूज पे कंडीशन हमारी क्या आई थी कि जो हमारा अल्फा है वो आया था हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब अल्फा जो है या तो वो 0 होगा या तो वो पॉजिटिव होगा, अल्फा जो है कैन नॉट बी नेगेटिव। दिस वाज इन द केस ऑफ बोज-आइंस्टीन गैस बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है दैट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। वहां पर हमारा ये केस निकल कर आया था। लेकिन अब हमारी जो ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आया है इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें -1 का फैक्टर नहीं है, उसमें +1 का फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास +1 का फैक्टर है, इसका मतलब ये जो हमारा 1 अपॉन डी है दैट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा, इसमें ये जो हमारा अल्फा है ये जरूरी नहीं है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही हो, ये नेगेटिव वैल्यूज जो है वो भी अब इसकी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन का बस ये मतलब है। और ये क्यों आया है इसको भी समझने की जरूरत है कि यहाँ पर हम ये क्यों कह रहे हैं कि अल्फा जो है वो सिर्फ पॉजिटिव नहीं होगा, इट में एज्यूम नेगेटिव वैल्यूज एज वेल अनलाइक बोज-आइंस्टीन गैस, क्योंकि बोज-आइंस्टीन गैस के हिसाब से तो अल्फा जो है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पर यहाँ माइनस का फैक्टर था, यहाँ पर यहाँ प्लस का फैक्टर है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन Ni जो है हमें इसको पॉजिटिव रखना है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। और 1 के साथ एक टर्म ऐड हो रही है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स वाले में मैंने ऑलरेडी ये चीज बताई थी कि हमारा 1 के साथ ये टर्म ऐड हो रही है, इसका मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा हमेशा 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। अगर तुम लोगों को ध्यान ना हो तो मैं दोबारा दिखा देती हूँ। हमने जब फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिराइव किया था तो हमने ये चीज बोली थी हमारा ये जो डिनोमिनेटर है इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ 1 विच इज वी हैव 1 प्लस, दैट मीन्स 1 के साथ जो है हमारी कुछ टर्म जो है ऐड हो रही है, इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है हमारा इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 irrespective of the value of alpha, it can be positive it can be negative, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है, डिनोमिनेटर जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब Ni जो है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो अल्फा जो है इट कैन एज्यूम नेगेटिव वैल्यूज एज
वेल ठीक है, बस यहाँ पर इतना डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम वही अप्रोच यूज करेंगे। हमारा जीपीडीपी क्या होगा, जीपीडीपी हम ऑलरेडी पहले भी डिराइव कर चुके हैं। दिस इज इक्वल टू 4 पाई वी पी स्क्वायर डीपी अपॉन एच क्यूब, विच इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल स्टेट्स lying between the momentum range p and p plus dp, और lying between the momentum interval p and p plus dp। और यहाँ पर हमने एक फैक्टर मल्टीप्लाई करा था gs, which is the spin degeneracy factor, ठीक है। और इसकी वैल्यू बोस-आइंस्टीन गैस के लिए हमने 1 ली थी, हमने s जो है उसको 0 कंसीडर किया था। gs हमारा क्या है, दिस इज इक्वल टू 2s प्लस 1, वेयर 2s जो है हमारा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो हमने बोस-आइंस्टीन गैस जो है उसमें जो पार्टिकल्स है हमारे, दे कैन हैव इंटीग्रल स्पिन। तो हमने सबसे मिनिमम और सबसे सिंपलेस्ट केस लिया था कि s जो है वो 0 है, ठीक है। तो gs हमारा 1 हो गया था। यहाँ पर अगर हम स्पिन कंसीडर करेंगे, fermions जो है they are half integral spins, they are having half integral spin। तो for fermions we can say if s is equal to 1 by 2, then हमारा gs क्या हो गया, gs हमारा हो जाएगा 2। gs की वैल्यू जो है हम लेटर ऑन सब्स्टिट्यूट करेंगे, और हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वल टू 2। हम s जो है इसका मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं 1/2, तो gs हमारा हो गया 2। नेक्स्ट अब हमारा क्या स्टेप होगा, टू राइट जीपीडीपी इन टर्म्स ऑफ GU DU। That means now we have to find the total number of particle states lying in the energy range U and U plus DU। कैसे निकालेंगे, जैसे बोस-आइंस्टीन में करा था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जो हमारी एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ओनली, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी फॉर अ सिंगल पार्टिकल। व्हाई, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग द पार्टिकल्स जो है दे आर नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, जो है दे आर मूविंग फ्रीली। तो पार्टिकल पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा सिंस दे आर मूविंग फ्रीली। तो अगर पार्टिकल पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो है या तो वो कांस्टेंट होगी या 0 होगी। So it will not contribute to the total energy. So we are considering the potential energy of a particle is 0, since particles जो है they are non-interacting, they are moving freely. Our gas is a perfect gas, so the energy will be only the kinetic energy. Kinetic energy is half mv square, and we know momentum is mass into velocity, so we can write half mv square as p square upon 2m। So the energy in terms of momentum becomes U is equal to p square upon 2m। Now अब हमें dp जो है इसको लिखना है in terms of du, हमें gp dp को लिखना है in terms of gu du। मतलब जो हमारा राइट हैंड साइड है इसमें जो भी मोमेंटम की टर्म्स है उनको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा विद u। कैसे रिप्लेस करेंगे, जैसे पहले किया था, p स्क्वायर हमारा क्या हो गया, p square will be 2mu। इसको डिफरेंशिएट करो, दिस गिव्स 2p dp is equal to 2m du। 2 cancel out होगा, so p dp is equal to m du। now substitute this value here, gs as it is रहा, 4 pi v upon h cube जो है ये भी as it is रहा हमारा। p square जो है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं p into p। p स्क्वायर को आई कैन राइट p into p। एक p हमारा क्या होगा, p स्क्वायर अगर 2mu है तो p हमारा हो गया अंडर रूट 2mu। तो p को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया अंडर रूट 2mu। फिर हमारा एक p और रहा, p dp को वी कैन राइट एज m du। तो p dp को हमने यहाँ पे लिख दिया एज m du। So this is giving gu du, that is the number of states lying in the energy range u and u plus du, and it comes out to be gs into 4 root 2 pi m raised to power 3 upon 2 v upon h cube into u raised to power half du। ये हमारी डिट्टो वही एक्सप्रेशन आई जो बोस-आइंस्टीन गैस में आई थी GU DU की, ठीक है। वहां पर भी हमारा यही था, उसको हमने लिखा था GS इंटू 4 पाई mv अपॉन h क्यूब इंटू अंडर रूट 2m u रेज टू पावर हाफ du। यहाँ पर भी हमने यही लिखा है, ये देखो हमारा ये है 4 पाई 3 m रेज टू पावर 3 अपॉन 2 में से अगर मैं एक m ले लूं तो मैं m रेज टू पावर 3 अपॉन 2 को कैसे लिख सकती हूँ, m इंटू m रेज टू पावर 1 अपॉन 2। तो एक m मैंने ले लिया तो ये हो गया 4 पाई mv अपॉन h क्यूब, एक m रेज टू पावर हाफ रह गया वो इस 2 के साथ चला जाएगा, तो अंडर रूट 2m। ठीक है, हमने पहले जो है GU DU को इसी टर्म में लिखा था,
यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। एकदम चीज जो है हमारी सेम रहेगी, बस यहाँ पर हमने m रेज टू पावर 3/2 जो है उसको ऐसे ही लिखा है। बोस आइंस्टीन गैस के केस में हमने m रेज टू पावर 3/2 को लिख दिया था m इंटू √m। तो हमारे पास ये हो गया था 4πmv/h³ इंटू √2m। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यही रहेगा u रेज टू पावर हाफ du। सो GU हमारा यहाँ पर जो आया वो एग्जैक्टली वही आया जो बोस-आइंस्टीन गैस में आया। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस आएगा इन द स्पिन डीजेनरेसी फैक्टर। वहां पे हमने GS जो है उसको 1 सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पे हमें GS जो है उसको 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो दिस इज आर GU हमने इस फॉर्म में लिखा था व्हेन वी वर डूइंग बोस-आइंस्टीन गैस। GS into 4πmv/h³ into √2m u raised to power half du. This is same as this expression. ठीक है, so what will be the next step? To substitute this value GU du in NU du. If we are considering energy levels to be very closely spaced, then in that case हम Ni जो है in the continuum limit it can be written as NU du. So NU du is representing the number of particles lying in the energy range U and U plus du. इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं dn फंक्शन ऑफ u। दोनों का जो है एक ही मतलब है, दोनों एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग इन द एनर्जी रेंज u and u plus du. So we are now substituting the value of gu du over here because nu du is equal to gu du upon e raised to power alpha plus बीटा u plus 1 और बीटा को वी सब्स्टिट्यूट एज 1/kt। तो nu du हमारा क्या हो गया? gu du अपॉन e रेज टू पावर अल्फा प्लस u अपॉन kt प्लस 1। तो gu du की वैल्यू जो है यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, हमने gu du की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा टर्म क्या आई nu du में? e raised to power alpha plus u upon kt plus 1 where beta is 1/kt. So here we have substituted the value of beta as 1/kt. तो ये हमारा nu du आया। ठीक है, ये हमारी वही एक्सप्रेशन आई जैसे बोस-आइंस्टीन गैस में आई थी। जब हमने बोस-आइंस्टीन गैस का डेरिवेशन करा था तो भी हमारी यही एक्सप्रेशन आई थी। डिफरेंस कहाँ पर आया है? सिर्फ डिफरेंस आया है सिर्फ यहाँ पर, बाकी सब सेम है। बोस-आइंस्टीन गैस में -1 था डिनोमिनेटर में, यहाँ पर हमारा +1 आएगा। ठीक है, सो नाउ व्हाट वील डू नेक्स्ट। गैस हमारी परफेक्ट है इसलिए हमने पार्टिकल्स जो उनको नॉन इंटरैक्टिंग कंसीडर किया था। एनर्जी जो है इट इज रिगार्डेड एज इंटायरली ट्रांसलेशनल इन कैरेक्टर, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी प्रेजेंट नहीं होगी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने पहले एक्सप्लेनेशन करी थी। पार्टिकल्स हमारे नॉन इंटरैक्टिंग है, गैस परफेक्ट है, इस वजह से जो एनर्जी है दैट विल बी ओनली काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट विल बी 0 सिंस पार्टिकल्स जो है दे आर मूविंग फ्रीली इनसाइड दिस गैस। नाउ if we have to find the total number of particles, ठीक है, और total number of fermions in this Fermi-Dirac gas, क्या होगा? We are considering the energy levels which are here translational energy levels. We are considering them to be very closely spaced, so we can replace summation by integration. Instead of summing over particle states, we'll integrate dnu from lower limit 0 to the upper limit or the maximum limit infinity। जैसे हमने बोस-आइंस्टीन में किया था, अब तक हमारा डिट्टो वैसा ही चल रहा है जैसा बोस-आइंस्टीन गैस में किया था। डिफरेंस कहाँ पे आया था? सबसे पहले एक डिफरेंस आया था कि अल्फा जो है वो जरूरी नहीं सिर्फ पॉजिटिव हो, इट कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज एज वेल। दूसरी चीज हमारा क्या डिफरेंस आया है? जो हमारी nu du की एक्सप्रेशन है उसमें डिनोमिनेटर में जो है +1 है नाउ इंस्टेड ऑफ -1। ठीक है, फिर n जो है वो हम निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे dnu को फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ nu du। हमने वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट करा और हम इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ u की टर्म्स रखेंगे क्योंकि हमारी बाकी टर्म्स जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ u, दे आर कांस्टेंट, सो दे कैन कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन।
तो हमारे पास n हो गया GS इंटू 4√2 पाई m रेज टू पावर 3/2 इंटू V अपॉन h क्यूब इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी u रेज टू पावर हाफ du अपॉन e रेज टू पावर अल्फा प्लस u अपॉन kt प्लस 1. So this is the expression representing the total number of particles of fermions in the Fermi-Dirac gas. Now what will be the total energy of the system? जो हमारा एक पार्टिकल है उसकी एनर्जी U है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू p²/2m. एक पार्टिकल की एनर्जी जो है U है. The number of particles that we have in the energy range U and U plus du वो हमारे कितने हैं, वो है हमारे dnu और you can say nu du. ठीक है, तो अब हमारे पास what will be the total energy of the system. एनर्जी रेंज U एंड U प्लस du के अंदर टोटल पार्टिकल्स dnu है, हर एक पार्टिकल की एनर्जी U है. तो टोटल एनर्जी कितनी होगी इन द रेंज U एंड U प्लस du, वो हमारी होगी U इंटू dnu. एंड व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो होगा U इंटू dnu को हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम द लोअर लिमिट 0 टू द मैक्सिमम लिमिट इन्फिनिटी, जैसे हमने बोस-आइंस्टीन गैस में किया था. तो यहाँ पर हमारी एक्सप्रेशन क्या हो गई, nu du की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये कांस्टेंट टर्म्स तो हमारी सेम रहेंगी. यहाँ पर हमारे पास चेंज आएगा क्योंकि अब यहाँ पर एक और फैक्टर है u का. तो ये हमारा अब u रेस्ट पर हाफ की जगह हो गया u इंटू यू रेस्ट पर हाफ, दैट इज u रेस्ट पर 3/2. रेस्ट ऑफ द टर्म्स जो है हमारी सेम रहेंगी. तो हमारी ये डिट्टो एक्सप्रेशन बोस-आइंस्टीन गैस में आई थी. डिफरेंस कितना है, बस यहाँ पे +1 है, फर्मी डिराक में वहां पे -1 था. ठीक है, नेक्स्ट वही सेम स्टेप हम यूज करेंगे. x जो है हमारा दैट इज इक्वल टू u अपॉन kt. सो इफ आई डिफरेंशिएट इट देन dx विल बी इक्वल टू du अपॉन kt. सो नाउ वी विल राइट u in terms of x to simplify this expression. तो n हमारा क्या हो गया, n is equal to GS. अब हमने इसको इसी फॉर्म में लिख लिया जैसे हमने बोस-आइंस्टीन गैस में लिखा था. n is equal to GS into V upon H cube. ये V upon H cube हमने यहाँ ले लिया. Then 2 upon root pi हमने बाहर ले लिया. तो हमारे पास यहाँ बचा 2m pi kt raised to power 3/2. ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ से यहाँ कैसे आई है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बोस-आइंस्टीन गैस के डेरिवेशन में. अगर किसी को क्लियर नहीं है यहाँ पे तो वो वाला लेक्चर जो है देख सकता है. ठीक है, कुछ नहीं है, इसको बस हमने रीशफल करके इस फॉर्म में लिखा है. ठीक है, सो वी हैव n is equal to gs into v upon h cube into 2m pi kt raised to power 3/2 into 2 upon root pi integration 0 से infinity. u जो है हमारा u raised to power half, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था एज x raised to power half into kt raised to power half. ठीक है, देन वी हैव du को हमने सब्स्टिट्यूट किया एज dx इंटू के टी. ठीक है, डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर अल्फा प्लस x प्लस 1. u अपॉन के टी हमारा क्या है x. ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरीके की जो है टर्म्स जो है बाहर आ जाती हैं व्हेन वी सब्स्टिट्यूट u रेज टू पावर हाफ एज के टी इंटू x होल रेज टू पावर हाफ and du को we substitute as kt into dx. तो kt में हमारी पावर आ गई 3/2 की, जो हमने यहाँ पर उसको डाला है. ठीक है, इसके साथ तो हमारे पास n क्या हो गया, gs into v upon h cube into 2m pi kt raised to power 3/2. Let this term is equal to f1 alpha. जब हमने बोस-आइंस्टीन गैस का डेरिवेशन किया था तब भी हमने इस टर्म को f1 अल्फा सब्स्टिट्यूट किया था. f1 अल्फा जो है अब यहाँ पर हमारा इसमें क्या डिफरेंस है, वही यहाँ पर जो है +1 है इंस्टेड ऑफ -1. तो हमारा n जो है वो यही है जो बोस-आइंस्टीन गैस में आया था. बस डिफरेंस कहाँ पर आया है, डिफरेंस आया है इन दिस इंटीग्रल f1 अल्फा. Now similarly we can write the total energy of the system in case of this Fermi-Dirac gas जैसे हमने पहले किया था. बोस-आइंस्टीन गैस में हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगी where F2 alpha is given by this expression. ठीक है,
जब हमने बोज आइंस्टीन गैस किया था तो वहां पर भी हमारी जो U है उसकी यही एक्सप्रेशन आई थी। यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पे लाई कर रहा है, डिफरेंस जो है इट इज लाइंग इन दिस इंटीग्रल F2 अल्फा, वहां पर यहाँ -1 था और यहाँ पर +1 है। तो अब तक हमने जो भी किया फर्मी डिराक गैस में, हमारा ये डिट्टो हमने सेम अप्रोच यूज करी जो बोज आइंस्टीन गैस में करी थी। डिफरेंस कहाँ कहाँ पर आया, हमारा डिफरेंस आया कि अल्फा जो है इट कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज एज वेल, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल, एक ये डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस क्या है हमारा, जो यहाँ हम GS पुट कर रहे हैं, द स्पिन डीजेनेरेसी फैक्टर विच इज 2s+1, ये जो हमारी स्पिन डीजेनेरेसी फैक्टर है ये हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर हम बोज आइंस्टीन गैस ले रहे हैं तो वहां पर हमारा जो मिनिमम वैल्यू था GS का वो 1 आया था। वी टुक S इज इक्वल टू 0 फॉर दी सिंप्लिसिटी, और यहाँ पर हम S को हाफ लेंगे तो यहाँ हमारा GS जो है वो 2 हो जाएगा। एक डिफरेंस यहाँ लाई करेगा और एक डिफरेंस और होगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल के साथ हमारा +1 का फैक्टर है, बोज आइंस्टीन गैस में हमारा -1 का फैक्टर था। तो बस यही डिफरेंसेस है, बाकी डिट्टो जो है हमारा यहाँ तक एकदम सेम है। Now, in order to find the total number of particles and total energy of the system, we should know the value of F1 alpha and F2 alpha. लेकिन यहाँ पर जो है अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने में एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि अल्फा जो है हमारा वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों ले सकता है। तो अगर हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करनी है F1 अल्फा एंड F2 अल्फा, तो यहाँ पर जो है हमें अल्फा की दोनों वैल्यूज कंसीडर करनी पड़ेंगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम इस तरीके से जो है वी कैन नॉट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो वील यूज द मोर कन्वीनियंट वे। क्या है वो कन्वीनियंट वे, बाय इंट्रोड्यूसिंग द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हमारा जो है डिफरेंस आएगा। अब जो डेरिवेशन होगा अब आगे जाके फर्मी डिराक गैस में, वो हमारा बिल्कुल डिफरेंट होगा जो हमने बोज आइंस्टीन गैस में किया। और ये डिफरेंस क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ फर्मियंस देन द बोसॉन्स। यहाँ पर फर्मियंस की क्या प्रॉपर्टी है, बोसॉन से अलग होते हैं फर्मियंस, इनका हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है एंड दे ओबे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक स्टेट में जो है या तो एक पार्टिकल होगा या एक भी नहीं होगा। तो अब क्या है, इस फर्मी डिराक गैस को एक्सप्लेन करने के लिए now we are introducing a function which is known as the Fermi-Dirac distribution function, and this is very important. ठीक है, the introduction of this Fermi-Dirac distribution function. Now ये क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं बाय FU and this is equal to NU upon GU. FU is the Fermi-Dirac distribution function. FU is equal to NU upon GU. So what will be our FU? It will simply be 1 upon e raised to power alpha plus U upon KT minus 1. Alpha हमारा क्या है? This is equal to minus mu upon KT. अल्फा जो है इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल न्यू और फर्मी एनर्जी UF एट टेम्परेचर T कैन बी रिटन एज, जो मैंने अभी शुरू में बताया था, अल्फा हमारा होता है माइनस म्यू अपॉन KT, इसको हम लिख सकते हैं एज माइनस UF अपॉन KT. व्हाट इज UF? UF जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फर्मी एनर्जी एट टेम्परेचर T. So now we'll study this system with the help of Fermi-Dirac distribution function FU, which is equal to NU upon GU, that is equal to 1 upon e raised to power alpha plus U upon KT plus 1, where alpha is equal to minus UF upon KT. अब देखो alpha जो है हमारा वो यहाँ पर क्या है, वो ऐड हो रहा है U upon KT के साथ। कोई टर्म अगर किसी के साथ ऐड होती है मतलब उस टर्म का वही डायमेंशन है जो उस टर्म का है, तो मतलब अल्फा जो है इसके डायमेंशंस भी हमारे U अपॉन KT के होंगे। U हमारी क्या है, एनर्जी, KT जो है इसके डायमेंशंस भी एनर्जी के हैं, मतलब अल्फा जो है हमारा इट इज अ डायमेंशन लेस
क्वांटिटी। ठीक है, तो इसके डायमेंशंस भी अगर हम U अपॉन KT के टर्म्स में लें तो इंस्टेड ऑफ U वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टर्म विच इज UF which is representing Fermi energy. So alpha is minus mu upon KT equal to minus UF upon KT. So replace here alpha as minus UF upon KT. So the Fermi-Dirac distribution function becomes 1 upon e raised to power U minus UF अपॉन KT प्लस 1. यहाँ प्लस 1 का फैक्टर मिसिंग है, प्लस 1 आएगा. तो ये हमारा फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. अब इसकी हेल्प से वील ट्राई टू स्टडी दिस फर्मी डिराक गैस. और ये हमें क्यों करना पड़ा? बिकॉज ये जो इंटीग्रल्स हैं हमें F1 अल्फा और F2 अल्फा इनको सॉल्व करना इस केस में मुश्किल है, बिकॉज अल्फा जो है इट कैन टेक बोथ द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज. So we are now trying to solve, or we are now trying to study this Fermi-Dirac gas with the help of Fermi-Dirac distribution function, which from equation 4.31 we have written in the terms of Fermi energy UF at the temperature T. ठीक है, तो ये हमारा distribution function है FU at any temperature T. नाउ अब देखो, हमें बोस-आइंस्टीन गैस के बाद हमने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन पढ़ा था. ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें क्या करना है एक्चुअली, कैसा सिस्टम है ये. इस सिस्टम में हमें करना क्या है, वी हैव टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द पार्टिकल्स. हमारे पास अगर सिस्टम में टोटल पार्टिकल्स n है एंड वी हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, और हर एक जो पार्टिकल है इट इज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट एनर्जी. So we have to just distribute these particles in the different energy levels, and we have to see that what happens at low temperatures and what happens at high temperature to the number of particles residing in the different energy levels. वही हमने बोस-आइंस्टीन में किया था, वही हम यहाँ पर देखेंगे. ठीक है, तो हमारा मेन फंक्शन क्या है, इज टू सी कि जब हमारा टेम्परेचर कम है और जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा है, दोनों ही केसेस में हाउ द पार्टिकल्स जो है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, वो हमें देखना है. मतलब जो है वी हैव टू स्टडी NU/DU इन डिटेल. हमें ये जो हमारा NU/DU था उसको हमने फिर इंटीग्रेट किया था टू गेट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो कहाँ पर है, यहाँ पर, टू सी हाउ the number of particles जो है they can be distributed in the different energy levels at different temperatures. What happens to the number of particles at low temperatures, what happens to the number of particles at high temperatures, and what happens at T equal to 0 Kelvin. ठीक है, जब T हमारा 0 Kelvin है that means हमारी जो energy है that is 0, energy is minimum. अब ये सारी चीजें जो है वो हम स्टडी करने वाले हैं. जैसे जब हमने बोस-आइंस्टीन गैस पढ़ने के बाद हम आगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टडी कर रहे थे, वहां पर हमने यही देखा था. जब हमारा एक क्रिटिकल टेम्परेचर था TC, यहाँ पर भी हम निकालेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ पे वो टेम्परेचर होगा फर्मी टेम्परेचर. जब हमारा टेम्परेचर जो है TC से कम हो जाता है, बोस-आइंस्टीन में हमने देखा था, देन डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल स्टार्ट्स. मींस जो हमारी बोस-आइंस्टीन गैस है इसका जो बिहेवियर है वो हमारा डेविएट हो जाएगा फ्रॉम द परफेक्ट गैस बिहेवियर. और हमने ये देखा था एज T टेंड्स टू 0 Kelvin, सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं दे विल ऑक्यूपाई द लोवेस्ट क्वांटम ग्राउंड स्टेट, और जो हमारे सारी की सारी स्टेट्स हैं एक्सेप्ट दैट ग्राउंड स्टेट वो हमारी कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएंगी. दिस हैपेंस एट T इक्वल टू 0 Kelvin. फिर हमने देखा था what happens to the very low temperatures. जब टेम्परेचर हमारा बहुत कम होता है उस केस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दे आर ऑक्यूपाइंग द लोअर एनर्जी स्टेट्स, और हायर एनर्जी स्टेट जो है उनमें से पार्टिकल्स जो है वो हमारे कम होते जाएंगे. सारे के सारे पार्टिकल्स जो है दे विल ट्राई टू ऑक्यूपाई द ग्राउंड स्टेट, और जब सारे के सारे या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है दे ऑक्यूपाई द लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट, देन दिस phenomena of increase in the number of particles to the lower energy levels when we decrease the temperature, this phenomena is known as Bose-Einstein condensation. कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट टू लास्ट क्लास में. The rapid increase in the population of the ground state below the critical temperature is known as the Bose-Einstein condensation. तो बेसिकली हम देख क्या रहे थे, हम ये देख रहे थे टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ जो हमारे पार्टिकल्स हैं
वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। पार्टिकल्स जो है वो कौन से एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स व्हेन वी डिक्रीज और इंक्रीज द टेम्परेचर एंड व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स एट T इक्वल टू 0 केल्विन। ये हमने देखा था, वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे। और अब हम वो कैसे देखेंगे, वो हम देखेंगे with the help of Fermi-Dirac distribution function Fu, which is equal to Nu upon Gu, and that is equal to 1 upon e raised to power u minus uf upon kt plus 1, where uf is representing the Fermi energy at temperature T. तो यहाँ पर अभी हमारा डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी यहाँ अब हमारा जो है एक्चुअल डेरिवेशन जो है वो शुरू होगा। तो अब हम ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि फर्मी एनर्जी होता क्या है, एंड वी विल स्टडी दिस सिस्टम एट T इक्वल टू 0 केल्विन, एट लोअर टेम्परेचर्स एंड एट हायर टेम्परेचर्स एज वेल। सो दिस वील सी इन द नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास ये डेरिवेशन हमारा बड़ा है फर्मी डिराक गैस का, तो इसको जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है आगे प्रोसीड करेंगे, ये अभी फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। Now we'll try to finish this derivation in the next class.